Let my heart be the temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We have been studying last week on the topic knowing the measure of your days. पिछले हफ्ते से हम इस विषय पर देख रहे हैं कि अपने जीवन के दिनों को Our जान life लें। on this earth is just a period of maybe 70, 80, depends on how strong you are. इस पृथ्वी पर हमारा जीवन शायद 70 या 80 साल का हो, ये आपकी शक्ति पर आधारित होता है। After that, what is your life? Where are you going? उसके बाद में आपका जीवन क्या है, आप कहां पर जाएंगे? A person who knows the measure of his days and then knows the end of his days will be a very careful man. जो व्यक्ति अपने जीवन के काल को जानता है, अपने जीवन के अंत को जानता है, वो व्यक्ति बहुत ही सावधान व्यक्ति होगा। We read from book of Psalms chapter 39 हमने भजन संहिता की किताब अध्याय 39 से पढ़ा where the है, psalmist says, Lord, make me to know my end and the measure of my days, what it is, that I may know how frail I am. भजनकार ये कहता है कि यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और ये भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कितना अनित्य So हूं। he is asking God to let him understand the extent of his life and the end of his life and what is beyond, so that he'll be careful. और यहाँ पर वो परमेश्वर से पूछता है कि उसका जीवन काल कितना है और इस जीवन काल के बाद में क्या होगा, ताकि वो सावधान रह Many सके। people don't think what is going on beyond his life. Just live for the present. बहुत से लोग इस बात के बारे में सोचते नहीं कि इस जीवन के बाद में क्या होगा, हम तो केवल इस वर्तमान में ही जीते रहते हैं। The wisest man that ever lived, King Solomon, और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो कि राजा सुलेमान था, after trying everything, सब कुछ कोशिश करने के At the end बाद he में said, अंत में वो कहता है, remember your creator in the days of your youth. अपनी जवानी के दिनों में ही अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जान Before the ले। wicked days come, before the evil times come. बुरे दिन आने के पहले, दुष्टता का समय आने के पहले Many people waste their life in doing so many things. At the end of their life, they realize that I have wasted all my life. बहुत से लोग तो अपने जीवन में बेकार की बातें करते, बेकार काम करते हैं, और जीवन के अंत में सोचते, अरे मैंने अपना जीवन have बर्बाद कर one दिया। life. हमारे पास एक ही You're not going जीवन to come है, back. हम वापस नहीं आने वाले हैं। If someone says, no, you'll come back again and again, that's a lie. अगर कोई आपसे कहे कि आप बार बार आएंगे, तो ये एक झूठ है। Bible says it is given appointed to man once to die, and after that there is a judgment. बाइबल कहती है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना नियुक्त है और उसके बाद में न्याय होगा, ऐसे बाइबल कहती है। We have to make the best of this life God has given us. परमेश्वर ने हमें जो दिया है, इसका हमें सबसे अच्छा उपयोग करते जाना है, इस जीवन का उपयोग करना What you है। do on this life determines where you go. इस जीवन में आप क्या करते हैं, ये निश्चित करता है कि आप कहां पर जाएंगे। If you have lived carelessly and you have sown the wrong things, you will reap the harvest for that. अगर आपने लापरवाही का जीवन जिया है और गलत तरीके से बीज बोया है, तो आप उसकी फसल जरूर If काटेंगे। you sow the right things and do the right things in this short life, you will reap everlasting life. अगर आप सही काम करेंगे, इस छोटे से जीवन काल में सही काम करते जाएंगे, तो अच्छा जीवन या उसके लिए अच्छी फसल आप पाएंगे। And we saw that our life is just like a handbreadth. और हमने देखा है कि हमारा जो जीवन है केवल एक बित्ते के And जैसे James said है। your life is like a vapor, just like a steam. और याकूब कहता है कि आपका जीवन जो है तो एक भाप के जैसे है, It just appears and vanishes. बस वो दिखती है फिर गायब हो जाती है। That's how your life is. आपका जीवन ऐसा Compared ही to है। eternity, you're like a full stop or just a hand's breadth. That's it. और अनंत काल की तुलना में तो आप बस एक फुल स्टॉप है या फिर एक बित्ते के जैसे, बस इतना ही है। It's good for a man to think beyond, okay, what will happen after this life, and then live his life according to that. और मनुष्य के लिए अच्छा है कि वो आगे का सोचे कि इस जीवन के बाद में क्या होगा और उसके अनुसार अपना जीवन जिए। I said that I considered it a privilege that I was at the age of 17 I came to know Jesus Christ. और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मेरे लिए सच में बड़ा सौभाग्य रहा कि उम्र के 18 साल में मैंने यीशु मसीह को जाना। It's a blessing from God ये परमेश्वर की ओर से आशीष है, because I didn't waste my life. क्योंकि मैंने अपने जीवन को बर्बाद नहीं People किया। who don't know the Lord Jesus who just waste their life in so many useless things. बहुत से लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो दूसरी बेकार की बातों में अपना जीवन बर्बाद Now last करते week हैं। we studied what a man who knows the measure of his days, what is the first thing that he will do?
हमने पिछले हफ्ते देखा कि जो मनुष्य अपने जीवन काल को जानता, अपनी आयु को जानता है, तो वो सबसे पहले कौन सा काम करता है? He will watch his tongue. वो अपने जीभ के बारे में He सावधान will रहेगा। not let his tongue cause, death to people, but rather life to people. उसके कारण, वो अपनी जीभ के कारण कभी लोगों के जीवन में मृत्यु नहीं लाएगा, लेकिन जीवन लाना चाहेगा। He will not set fire like a forest fire with his tongue by the bad words he speaks. He will not do that. अपने मुंह से जंगल की आग के जैसे ये जो जीभ जो गलत शब्द बोलती है उसे जंगल की आग लगती है, वैसा नहीं करेगा। Because Jesus said, by your words you will be justified or you will be condemned. क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम्हारे शब्दों के द्वारा ही तुम्हारा न्याय होगा या फिर तुम पर दोष लगाया जाएगा, तुम्हें धर्मी ठहराया जाएगा। And Jesus said, you will have to give account of every word you speak. और यीशु ने कहा कि हम हर एक शब्द जो कहते हैं उसका लेखा हमें देना होगा। A man who knows the measure of his days will be very careful how he speaks. जो व्यक्ति अपने जीवन काल को जानता है वो क्या कहता है उसके बारे में बहुत सावधान रहता है। The man who doesn't offend in word is a perfect man and is able to control his whole body. It is written in the book of James. याकूब की किताब में ऐसा लिखा है कि जो मनुष्य अपने जीभ को वश में लाना जानता है वो सिद्ध मनुष्य, और वो अपने शरीर को पूरी तरह से वश में रखता है। Because the tongue is like a fire. क्योंकि जीभ तो आग की जैसी है। You can set a whole forest fire with just a matchstick. अब बस एक माचिस की तीली से आप पूरे जंगल में आग लगा सकते हैं। Careless words can destroy people's lives. लापरवाही से कहे गए शब्द लोगों के जीवन को नाश कर सकते हैं। The second thing a man will do who knows the measure of his days and knows the end of his days, he will keep his heart and minds on things of heaven. दूसरी बात, जो मनुष्य अपने जीवन काल को जानता है, जो अपने अंत को जानता है, वो अपने मन को और अपने दिल को स्वर्ग के लिए बिल्कुल शुद्ध रखेगा, स्वर्ग पर मन लगाएगा। Because he knows that his life is short. क्योंकि वो जानता है कि उसका जीवन काल बहुत ही छोटा Just है, 70, 80, 90 years maximum. बस ज्यादा से ज्यादा 70, 80 या 90 साल। And after that he is going to live eternity. और उसके बाद में वो अनंत काल तक He will जिएगा। keep his mind and his heart on things which are pleasing to God. वो अपना मन उन चीजों पर लगाएगा जो परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं, उन्हीं बातों के बारे में सोचेगा। He will be mindful of those things which please God and he will do those things which is the will of God. परमेश्वर को जो प्रसन्न करते हैं उन बातों के बारे में सोचेगा, और जो परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है उसे ही वो करेगा। Because you're going to live forever in heaven. क्योंकि आप स्वर्ग में अनंत काल के लिए जिएंगे, Or if you're not careful, forever in hell. और या फिर अगर सावधान नहीं रहे तो हमेशा के लिए नरक में जिएंगे। So it's important that a man keep his heart and mind on things which are heavenly things, spiritual things. और इसीलिए जरूरी है कि एक मनुष्य अपने विचारों को आत्मिक बातों पर, स्वर्गीय बातों पर लगा कर रखे। The Bible says in Colossians chapter 3 verse 1, कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 1 में बाइबल कहती है, if ye then be risen with Christ, seek those things that are above, where Christ sits at the right hand of God. अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, वह मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के Verse दाहिनी ओर 2, बैठा है। set your affection on things above and not on things of this earth. वचन 2, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। And verse 3 says, for you are dead and your life is hid with Christ in God. क्योंकि वचन 3 कहता है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। So if you have accepted Jesus Christ into your life, अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है, the Bible says you are dead to this life. तो बाइबल कहती है कि आप इस जीवन के लिए मर चुके You are हैं। alive spiritually. आप आत्मिक रूप में जीवित Now you हैं। live the rest of your life with your heart and affection on things above. अब आप अपना बाकी जीवन जो है, जिसमें आप अपना दिल, अपना मन ऊपर की यानी स्वर्गीय बातों पर लगाते हैं। Keep your heart on things which God likes. अपना दिल उन बातों पर लगाए जो परमेश्वर को God has पसंद given करता His है। will and His ways in the Word of God. परमेश्वर ने अपनी इच्छा और अपने मार्ग परमेश्वर के वचन में बताए हैं। You will meditate and study the Word and live according to the Word of God. आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे और उसी के अनुसार अपना Your जीवन affection जिएंगे। will not be on things that are temporary around you. आपके आसपास की जो चीजें जो कुछ समय की है, आपका आकर्षण उन बातों की ओर नहीं रहेगा, Because you know that one day you're going to stand before God. क्योंकि आप ये जानते हैं कि एक दिन मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहूंगा। After this short life, you're going to live eternally in heaven with God. और इस छोटे से जीवन के बाद में आप परमेश्वर के साथ में स्वर्ग में अनंत काल के साथ रहेंगे। It will be a very sad thing when you finish your life and you stand before God and say, Lord, I wasted my life. और ये तो बड़ी दुख की बात होगी कि आप परमेश्वर के सामने खड़े रहें और इस तरह से कहें कि हे परमेश्वर, मैंने अपना जीवन बर्बाद किया It है। will be so sad when you say, I didn't know the will of God, I didn't find the will and do the will, I did nothing, I wasted my life. It will be very sad. ये बड़ी दुख की बात होगी कि आप कहें कि मुझे परमेश्वर की इच्छा पता नहीं थी, मैंने परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना और उसके अनुसार नहीं किया। ये बड़ी दुख की बात A होगी। person who knows the measure of his days जो व्यक्ति अपने जीवन काल को जानता है will live in such a way
वो इसी तरह से जिएगा that when he comes to the end of his life, he will hear the voice of God saying, "Well done, my son." कि जब वो अपने जीवन काल के बिल्कुल अंत में आएगा तो वो परमेश्वर की आवाज को कहते हुए सुनेगा कि हे धन्य मेरे If you have विश्वासियों found the के will of दास। God and done it on this earth, अगर हम परमेश्वर की इच्छा को जाने और इस पृथ्वी पर उसी के अनुसार काम करें तो then you will know that you have not wasted your life. You'll have boldness to stand before him. तब आप जानेंगे कि आपने अपना जीवन बर्बाद नहीं किया, आप बड़ी हिम्मत से उसके सामने खड़े But if you have रहेंगे। spent all your time in getting the possessions and getting your cars and your houses and your business, you had no time for God. और अगर आप अपने जीवन को केवल अपने जीवन के लिए बर्बाद करेंगे, जैसे कि कार खरीदना, बंगला खरीदना, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ समय नहीं देते हैं, When you stand before him, और फिर जब आप उसके सामने and खड़े God होंगे, asks you, "What have you done for me? परमेश्वर आपसे पूछेगा तूने मेरे लिए क्या किया How did you है, live your life on this earth?" इस पृथ्वी पर तूने अपना जीवन किस तरह से जिया What will है, you say? तो आप क्या कहेंगे? See, I want to be such a person देखिए, मैं ऐसा व्यक्ति होना चाहता हूँ that I want to find what God wants me to do, and I want to do it. कि मैं खोजना चाहता हूँ कि परमेश्वर क्या कर चाहता है कि मैं करूँ, और मैं उसे करना The चाहता हूँ। deepest desire of my heart should be, Lord, I want to hear you say, "Well done." हमारे दिल की गहरी इच्छा यही होनी चाहिए कि हम परमेश्वर को ये कहते हुए सुने कि हे भले और विश्वास योग्य दास, तूने Doesn't अच्छा matter if I किया। don't get anything much here. I want my things to be in heaven, my rewards to be in heaven. मेरे पास यहाँ पर ज्यादा चीजें नहीं रही तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में मेरे पास में बड़ा प्रतिफल होना It will be चाहिए। a sad thing if you're a rich man and a great man here, but a very poor man in heaven. It will be very sad. ये बड़े दुख की बात होगी कि मैं यहाँ पर इस पृथ्वी पर बहुत ही धनी व्यक्ति रहूंगा और पृथ्वी पर बहुत ही कंगाल व्यक्ति There are so रहूंगा। many people who are rich on this world and great in this world, good stature, good position, but in God's sight they are very poor. बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस संसार में बहुत धनी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, आकर्षक दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुत ही कंगाल हैं। That's a very sad state. ये सबसे दुख की बात है। It is better to be simple here on this earth and great in the kingdom of heaven. ये अच्छा होगा कि हम इस पृथ्वी पर बिल्कुल सरल व्यक्ति रहे, साधारण रहें और परमेश्वर के राज्य में बड़े हो। Because all your position, all your fame, all your wealth is only temporary. It's going to last only for this much time. क्योंकि जो आपकी सारी शोहरत है, आपका जो पैसा है, सब कुछ है, वो केवल कुछ समय का है, वो यहाँ पर ही बना रहेगा, यहीं पर कुछ समय तक रहेगा, You can't take anything with you. और आप अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जा सकते The only हैं। thing you can take is what you have done for the kingdom of God. बस आप अपने साथ वही लेकर जाएंगे जो आपने परमेश्वर के राज्य के लिए किया है। There's a joke about somebody, किसी के बारे में ये एक जोक है। a very rich man, एक बहुत धनी व्यक्ति with था, lots of gold. उसके पास बहुत सा सोना था, And it says he died and he went to heaven. It's a joke anyway. Before he died, he packed some gold into a bag. He said, "Let me take some gold with me." ये एक जोक है। उसने मरने के पहले कुछ सोना बांधा और कहा चलो ठीक है, मैं ये अपने साथ स्वर्ग में लेकर Maybe I can जाऊंगा, use it there. शायद मैं इसका वहां पर उपयोग करूं। So when he got there and with the bag full of gold, और वो वहां पर सोने की बैग को लेकर वहां पर पहुंचा, and the angel said, "What did you bring here?" और स्वर्गदूतों ने उससे पूछा तुम यहाँ पर क्या लेकर He आए said, "I हो?" brought some gold with me." उसने कहा मेरे साथ मैं थोड़ा सोना लेकर आया हूँ। Hey, this is all pavement stones in heaven. उसने कहा अरे ये तो स्वर्ग में ये घर बनाने के पत्थर के लिए है, The roads are made of gold. सड़कें सोने की बनी हुई हैं। See, what you earn here is worthless in heaven. देखिए आप यहाँ पर जो कुछ भी कमाते हैं वो स्वर्ग में बिल्कुल बेकार है। The only thing which is of worth is what you have done for the kingdom of God. आपने परमेश्वर के राज्य के लिए क्या किया है, केवल वही मायना रखता है। The only thing which is worth is have you found the will of God and fulfilled it? और एक ही बात जो मायने रखती है कि क्या आपने परमेश्वर की इच्छा को जाना है और क्या उसे पूरा किया Have है। you used the talents that God gave you for His kingdom? परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर ने जो योग्यता आपको दी है उसे आपने We all उपयोग have किया। talents. आप सबके पास योग्यताएं हैं, Different types of talent. अलग अलग योग्यताएं हैं। What have you used it for? आपने उसका उपयोग किसके लिए किया Have है? you used it with the idea that I'm going to be in heaven, so let me use it for that purpose? क्या आपने इस विचार से इसका उपयोग किया है कि मैं एक दिन स्वर्ग में रहूंगा तो चलो उस उद्देश्य के लिए मैं इसका उपयोग करता हूं? Or have you done it just for your fame and popularity? या फिर आपने केवल अपनी शोहरत के लिए, अपने विख्यात होने के लिए इसका उपयोग किया? All the things that you earn and do here, it'll just get burnt up. आप जो कुछ भी यहाँ पर कमाते हैं वो तो केवल ऐसे ही जल You earn जाएगा। everything and somebody else will enjoy the benefit of all that you have done. After you go, somebody will enjoy it. आप सब कुछ कमाते हैं लेकिन आपने जो कुछ भी कमाया आपके जाने के बाद में उसका But कोई और what उसका you आनंद have done उठाता। for the kingdom of God will last forever. लेकिन आपने परमेश्वर के राज्य के लिए जो किया है वो सदा के लिए बना रहेगा। Person who knows the measure of his days will live his life with his heart and mind on things of heaven. जो व्यक्ति अपने जीवन काल को गिनना जानता है, वो अपना मन स्वर्ग के ऊपर लगाकर जीना जानता है, वो उसी के अनुसार अपना जीवन जिएगा, स्वर्ग के बारे में सोचेगा। The third thing a person will do who has that measure of his days, और एक बात जो कि मनुष्य जो अपने दिनों को गिनता है वो ये करेगा, he will have a healthy respect for God's
judgment and for God's wrath. वो परमेश्वर के न्याय और परमेश्वर के क्रोध के लिए बिल्कुल सही आदर रखेगा। Many people think God is like Santa Claus in heaven. बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर तो स्वर्ग के सेंटा क्लॉस के जैसे है Oh, always laughing and oh, my son, don't worry, I'm here. और वो हमेशा हंसता है, ओ मेरे बेटे चिंता मत कर, मैं यहाँ पर हूँ। Whatever you do, I'll just forgive everything. They think God is so, it's just like Santa Claus. और तू जो भी करे मैं तुझे माफ करूंगा। वो सोचते परमेश्वर बस सेंटा क्लॉस के जैसे है। God is a very loving God, merciful, extremely merciful, great God. परमेश्वर तो बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है, बहुत ज्यादा दयालु है, वो महान परमेश्वर Tender है। mercies. He has such tender mercy for each one of us. हम में से हर एक के लिए उसके पास में कोमल दया है। But there's another side to God. लेकिन परमेश्वर का एक और पहलू है। You only see one side and you think, oh, whatever I do, nothing will happen to me. आप एक तरफ देखते हैं और कहते हैं, ओ चाहे मैं जो भी करूं मुझे कुछ नहीं होगा। But if you realize that God is also a judge, लेकिन अगर आप ये जानें कि हाँ परमेश्वर न्यायी भी है, you will be careful. तो आप सावधान होंगे। Those who are careless in their life, they don't have the fear of God. That's what I'm saying, the fear of God. और जो लोग अपने जीवन में परवाह नहीं करते, उनके पास में परमेश्वर का भय नहीं होता, इसलिए मैं कहता The हूँ fear of परमेश्वर God, का I don't भय। mean you sit and tremble and shiver at God. I don't mean that fear. और देखिए परमेश्वर का भय, मैं ये नहीं कहता कि आप बस बैठे रहे और कांपते रहे, वो Like डर some नहीं people say, है। always he's waiting with a stick to beat you whenever you make a mistake. It's not like that. और जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि वो बस डंडा लेकर राह देखता है कि आप कब गलती करेंगे और आपको मारे, Fear of वैसा God नहीं। is respect for him. परमेश्वर का भय यानी उसके लिए आदर रखना है। A healthy respect for his greatness, his awesomeness, healthy respect. उसके महानता, उसकी अद्भुतता के लिए एक सही ऐसा आदर रखें। You don't take him lightly. आप उसे हल्के रूप में नहीं लेते हैं। You don't take him, just like one, happy-go-lucky man who does nothing. He just gives on giving gifts. Not like that. आप इस तरह से नहीं ले सकते कि हाँ वो बड़ी खुशी से रहता है, लकी आदमी है, वो किसी को कुछ नहीं बोलता, बस भेंट First देता Peter रहता। chapter 1 verse 17 says, पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 17 ये कहता है, it says, and if you call on the Father, that means God, who without respect of persons judges every man's work, then pass the time of your sojourning in this world in fear. कि जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। That's what I mean, that a person who knows the measure of his days will realize that the God I serve is a great God. और देखिए जो व्यक्ति अपने जीवन काल को जानता है, वो इस बात को मानेगा कि हाँ परमेश्वर महान परमेश्वर है, He is an awesome God. वो अद्भुत परमेश्वर है, He is a God of judgment. वो न्याय का परमेश्वर है। What we have done, we have to answer him on that day. जो कुछ भी हमने किया है उसका जवाब हमें उस दिन उससे देना होगा। He won't just slap everybody on the back and say, good, 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 get in, get in, get in. He won't say हाँ, that. वो सबके पीठ पर थपथपा कर ये नहीं कहेगा हाँ अच्छा किया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे नहीं कहेगा। The God that we serve is an awesome God and he will judge every man according to his work. जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो हर एक व्यक्ति के कामों के That's अनुसार why it उन्हें says, पलटा देगा। pass the time of your sojourn on this earth in fear. और ये कहता है कि इस पृथ्वी पर परदेसी रहते हुए अपना समय भय से बिताओ। Fear, not fear of that, oh, he'll beat me, not that way, but fear of offending him. देखिए ये डर नहीं रखना है कि ओ वो मुझे मारेगा, नहीं, लेकिन उससे शोकित करने का डर, वो भय हमारे जीवन में You होना respect चाहिए। him so much that you don't want to offend him. That's the fear of God. आप उसका इतना ज्यादा आदर करते हैं कि आप उसे ठोकर नहीं पहुंचाना चाहते, शोकित नहीं करना चाहते, ये परमेश्वर का भय है। You will not do anything which will grieve the Spirit of God. आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो परमेश्वर की आत्मा को शोकित करता हो। Whatever you will do it with the knowledge that I am serving an awesome God. Let me respect him. और आप जो भी करते हैं वो इस ज्ञान के साथ में करें कि हाँ मैं अद्भुत परमेश्वर की सेवा करता हूं, और उसी के अनुसार आप उसे करेंगे। People who are careless in their life, they have no fear of God. They don't realize who God is. जो लोग अपने जीवन में परवाह नहीं करते वो इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है। Isaiah was a prophet of Israel. यशायाह इज़राइल का भविष्यवक्ता था, And God called him. और परमेश्वर ने उसे God बुलाया, anointed him to be a prophet. परमेश्वर ने उसे भविष्यवक्ता होने के लिए अभिषेक And he दिया, was moving in the office of the prophet in his ministry. और वो अपनी सेवकाई में भविष्यवक्ता के रूप में काम करता था। Suddenly in the 6th chapter of Isaiah, he gets a vision of God on his throne. और अचानक यशायाह अध्याय 6 में वो परमेश्वर का दर्शन देखते हैं, जहां परमेश्वर सिंहासन पर When he विराजमान saw है, God's glory, और वो परमेश्वर की महिमा को देखता saw है, God's holiness, उसने परमेश्वर की पवित्रता को the देखा, angels shouting, holy, holy God Almighty.
और स्वर्गदूत चिल्लाते हैं, पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। When he saw that, जब उसने ये देखा, immediately he realized, I'm a sinful man. I live among the midst of sinful people. उसने जाना कि मैं एक पापी मनुष्य हूं और मैं पापी लोगों के बीच में रहता हूं। He saw the glory of God. उसने परमेश्वर की महिमा को Don't देखा। take him lightly. उसे हल्के रूप में मत लीजिए। God is an awesome God. परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर Just है। because he doesn't strike us for every sin we commit doesn't mean we should take it lightly. और वो हम जो भी पाप करते हैं उसके लिए तुरंत नहीं मारता, इसका मतलब ये नहीं कि उसे हल्के रूप में ले ले। He has been so patient with us. वो हमारे साथ में धीरज धर के रहता है। Don't take it lightly. इसे हल्के रूप में न लें। Because of his love, he has been patient with us. अपने प्रेम के कारण वो हमारे लिए धीरज धरता है। In Hebrews chapter 12, इब्रानियों अध्याय 12 में verse 28 it says, वचन 28 में ये कहता है, Wherefore we have received a kingdom which cannot be moved. Let us therefore have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वो प्रसन्न होता है। And the next verse says, Our God is a consuming fire. और अगला वचन कहता है कि हम, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। See, not only he is a loving and merciful and tender God, at the same time, he is a consuming fire. देखिए, वो केवल प्रेमी, दयालु और कोमल परमेश्वर ही नहीं है, लेकिन साथ में वो भस्म करने वाली आग भी है। Man who knows the measure of his days has seen both the sides. जो व्यक्ति अपने जीवन काल को गिनना जानता है, उसने इन दोनों पहलू को देखा है, वो जानता है। He knows that my God that I serve not only loves me and is so good to me, at the same time, if I am careless, I'll see him as the consuming fire. वो जानता है कि जिस परमेश्वर को मैं कहता हूं कि वो मेरा प्रेमी परमेश्वर है, लेकिन इसके साथ में वो भस्म करने वाली आग भी है, वो इसे अच्छे से जानता है। I have the fear of God. मेरे पास परमेश्वर का भय I है। don't want to offend him. मैं उसे ठोकर नहीं पहुंचाना चाहता। I'm a human being. मैं एक मनुष्य He हूँ, is God. वो परमेश्वर है। How can I take him so lightly? मैं उसे इतने हल्के रूप में क्यों ले सकता हूँ? If I offend him, अगर मैं उसे ठोकर पहुंचाऊं I can be burnt. तो मैं भस्म हो सकता हूँ। He is a consuming fire. वो भस्म करने वाली The आग Bible है। says that at his presence the mountains melt like wax. और बाइबल कहती है कि उसके उपस्थिति में उसके सामने पहाड़ मोम के जैसे पिघल जाते हैं। The earth trembles at his presence. पृथ्वी उसकी उपस्थिति में कांपती है। The earth is his footstool. पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। And we human beings, just like a speck of dust, where is God? Who is God? We talk against him. और हम मनुष्य जो कि केवल मिट्टी है, धूल है, और हम कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, ऐसी बातें करते हैं। Oh, we point our finger and curse God. हम अपनी उंगली उठाते और परमेश्वर को कोसते हैं। I really, so many times I wonder. और कई बार मैं सच में There is so much सोचता हूँ, sins going on. How is God so patient with the world? इतने सारे पाप हो रहे हैं और परमेश्वर इस संसार में कैसे धीरज धर के है। How is he allowing people to do so many bad things? I just wonder sometimes. कई बार मैं सोचता हूँ कि वो लोगों को इतने बुरे काम कैसे करने दे सकता है। God is so awesome. With one breath, he can just wipe everything off. परमेश्वर इतना अद्भुत है कि बस एक फूंक मारते ही वो सब कुछ मिटा सकता है। The people who do so wickedly, just one word and they'll be gone. जो लोग इतने दुष्टता का काम करते, बस एक शब्द कहे तो वो खत्म हो जाएंगे। That's the greatness of our God. He's so patient. वो यही तो हमारे परमेश्वर की महानता, वो इतना धीरज रखता है। Even the sinner, the people who commit sin, he still loves them. He still wants to bring them. और हालांकि जो पापी जो पाप करता है, फिर भी वो चाहता है कि वो उसके पास में लौट कर आए, वो उनसे प्रेम करता है। God has given us the time. परमेश्वर ने हमें समय दिया है, He's given us a life. उसने हमें जीवन दिया है। This life that he has given you, you have to honor him and respect him. ये जीवन जो उसने हमें दिया है, हमें उसका आदर करना है, उसका सम्मान करना है। Someone said, किसी ने कहा है, if you don't meet him as your savior and your Lord on this earth, अगर आप इस पृथ्वी पर उसे अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में उससे नहीं मिलते हैं, on that day of judgment, you will see him as a judge and no more. There you will see the judgment of God. You will see his nature as a judge. तो फिर उस न्याय के दिन आप उसे न्यायी परमेश्वर के रूप में दिखेंगे और ये उसका स्वभाव होगा। There you don't expect, oh, he is merciful now, he'll forgive me. There it's over. और वहां पर ये अपेक्षा मत कीजिए, ओ ये दयालु है, मुझे माफ करेगा। वहां पर तो ये सब खत्म हो गया। On this life you have a chance. इस जीवन में आपके पास में मौका That's why you है, need to know the measure of your days. और इसलिए आपको अपने जीवन काल को जानना बहुत जरूरी है। Don't take him lightly. उसे हल्के रूप में न लें। It's better to know him as a savior on this earth than to meet him as a judge in heaven. इस पृथ्वी पर उसे उद्धारक के रूप में जानना अच्छा होगा, इसके बजाय कि स्वर्ग में उसे न्यायी के रूप में हम देखें। When you stand before him as judge, there is no mercy that time. और जब आप उसके सामने खड़े होंगे और वो न्यायी होगा, तो उस समय वो दया नहीं करेगा।
Whatever you have sown, you will reap that day. आपने जो कुछ भी बोया है उस दिन उसकी कटनी करेंगे। If you have mocked God on this earth, you will face the consequences on that day. अगर इस पृथ्वी पर आपने परमेश्वर का मजाक उड़ाया है तो आप उस दिन उसका परिणाम भुगतेंगे। But when you know Jesus Christ, you receive His mercy and blessing and grace and favor. लेकिन यदि आप यीशु मसीह को जानते हैं तो आप उसकी आशीष, उसकी दया, उसकी कृपा और उसके अनुग्रह I को want to give you पाएंगे। this chance. मैं आपको ये मौका देना चाहता हूँ। Have you ever come to know the Lord Jesus Christ in your life? क्या आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। Are you living your life carelessly? क्या आप अपना जीवन लापरवाही से Have जी you रहे been हैं? cursing God and cursing people and cursing everything? क्या आप परमेश्वर को और लोगों को और सभी को कोसते आ रहे हैं? Are you in bondage to sins and addictions? क्या आप पाप और बुरी लतों के बंधन में पड़े हुए हैं? Why don't you give your life to Jesus Christ तो क्यों ना अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दें and come into the family of God? और परमेश्वर के परिवार में आ जाएं। God is willing to accept you into His family. परमेश्वर अपने परिवार में आपको स्वीकार करने की He इच्छा sent रखता His है। Son to die for you. उसने आपके लिए अपने बेटे को मरने के लिए भेजा। Jesus Christ suffered on the cross, shed His blood, gave His life for your sake and for my sake. यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर दुख उठाया, अपना जीवन दिया, बस आपके लिए और मेरे लिए उसने दिया। Why don't you pray with me? आप मेरे साथ प्रार्थना If क्यों you नहीं pray करते? sincerely with all your heart, God will hear your prayer. अगर आप ईमानदारी से मेरे साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी All your प्रार्थना sins will सुनेगा। be forgiven. आपके सारे पाप माफ किए He जाएंगे। will write your name in His book. वो अपनी किताब में आपका नाम लिखेगा And after this life, you will have eternity in heaven with Him. और इस जीवन के बाद में आप स्वर्ग में उसके साथ में अनंत काल बिताएंगे। Why don't you pray with me? क्यों ना आप मेरे साथ प्रार्थना करें? Sincerely, just pray after me and God will hear your prayer. ईमानदारी से आप मेरे बाद प्रार्थना दोहराएं और परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। Father in heaven, स्वर्गीय I पिता, have sinned against you. मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। I have done many things to grieve you. तुझे शोकित करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। I repent of all my sins. मैं अपने सारे पापों से पश्चाताप करता हूँ। Forgive my sins. मेरे पापों को क्षमा कर। Come into my heart, Lord Jesus. मेरे जीवन में, मेरे दिल में आ प्रभु I यीशु। believe you died on the cross for me. मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे लिए क्रूस पर मरा। I believe you shed your blood for me. मैं विश्वास करता हूँ तूने मेरे लिए अपना लहू बहाया। Wash me in your blood. मुझे अपने लहू से धो दे Change प्रभु। my life. मेरे जीवन को बदल Make दे। me your child. मुझे अपनी संतान बना। Thank you, Father, for hearing my prayer. मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद In पिता। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता Amen. हूँ, आमेन। Father, I pray for those who are sick. पिता, जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। Heal them in the name of Jesus. यीशु के नाम में इन्हें चंगाई I दे। rebuke that spirit of infirmity. कमजोरी की इस आत्मा को मैं डांटता हूँ। Every disease that is upon you, I rebuke it in Jesus' name. इन लोगों के ऊपर जो भी बीमारी है उसे मैं यीशु के नाम में डांटता हूँ। Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम में चंगे हो In जाएं। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। God bless you. प्रभु आपको आशीष See you दे। next week. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।